Hello everyone, let's continue with the algorithm. So we were discussing about the binary search and let's see some of the question related to the searching. So here input is a sorted array of n element, a sorted array of n elements, a sorted array of n elements and output is find two elements find two elements a and b such that such that a plus b a plus b that is equal to 1000, right? A plus b that is equal to 1000. Okay, I think it was homework question. Did you solve this one? ओके नहीं हुआ. ओके, चलो सॉल्व कर. Assume this is the array with element 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Okay, this is what a array, and in this array this one is the index 1 2 3 5 6 7 and 8. Okay, here this is what a array given and index given. Now what will happen? So first thing, what will happen if we apply the linear search here, right? If we apply linear search means what we are looking for, we are looking for a plus b equal to 1000, a plus b that is equal to 1000. Okay, in that case what will happen here? This is what the starting index, this is what the ending index. Now if we apply the linear search, what will happen? Assume that we are taking the first element as a, right? So a equal to 100. Now next element we can take this one, linear search we are applying, huh? So next we'll take this one, a plus b means 200, that is equal to 300, so it is not equal to 1000. Okay, then we'll take the next element, then it is 100 plus 300, that is 400, again it is not equal to, and then we'll take this one 400, 100 plus 400, that is equal to 500, right? 100 plus 400, that is equal to 500.
After that we will take the next element 500 plus this one, that is 600. After that 600 plus 100, 700. After 700 plus this one, that is 800. And after that this one, 800 plus 100, that is 900, right? Okay, so we have taken this element, and how many comparison we have done? So it is 3 4 5 6 7. Okay, total elements are 8, so we have done 7 comparison. Means here we have done approximately n minus 1 comparison for this one. Next time if we take 200, so 200, I will take 200 and will compare with next n minus 2 elements, right? We will compare with n minus 2 elements. Again we'll take 300 and compare with n minus 3. We'll check the addition, it is equal to 1000 or not. N minus 3. After that n minus 4 comparison, and so on 1, right? So if we add all these, then what will be the total comparison we have done? So it will be 1 plus 2 plus 3 plus so on up to n minus 1. So if we add this one, it is n into n minus 1. ओके ये कितना हो जाएगा n इंटू एन माइनस 1 प्लस 1, है ना, n माइनस 1 प्लस 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. अप्रोक्सीमेटली वी कैन से इट इज़ n स्क्वेयर. तो लगभग कितना आ जाएगा इसका एडिशन? n स्क्वेयर आ जाएगा. इट मीन्स इट विल टेक द n स्क्वेयर टाइम. ऐसा ही होगा ना, डिवाइड बाय 2. यस, क्लियर और नॉट? एडिशन करना आता है ना, सम ऑफ दीज नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n माइनस 1. n तक का क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ऐसा ही होता है ना. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? दैट इज n स्क्वेयर. तो लीनियर सर्च के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? इफ वी अप्लाई द लीनियर सर्च, राइट, इफ वी अप्लाई लीनियर सर्च, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी? दैट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वेयर. ओके, what will happen if we apply the binary search? Can you tell me, if we apply binary search over the array, then how much time it will take? यस, बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इसका हाफ लगेगा. Yeah, n log n, that may be the right one, right? So if we apply binary search here, then it will take n log n time. How it is n log n time? Assume that here a equal to 100, तो हमें b सर्च करना है, और b सर्च करके क्या करना है, उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू 1000. तो क्या करना पड़ेगा? ए क्या है? पहला एलिमेंट. उसके बाद रिमेनिंग जो एलिमेंट हो गया उसका मिडल निकालेंगे. मान लीजिए ये वाला मिडल है, ठीक है, मिडल निकाला. उसके बाद क्या करेंगे?
मिडल एलिमेंट को इसमें ऐड करके देखेंगे। मिडल एलिमेंट मान लीजिए कि ये 400 है, तो 400 ऐड करेंगे 100 में, तो क्या आ गया 500। अभी भी सफिशियंट नहीं है, तो लार्जर लार्जर चाहिए। लार्जर चाहिए तो इस वाले सब एरे पे फिर से अप्लाई करेंगे, राइट। इस वाले सब एरे पे अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, राइट। तो फिर से मिडल पे जाएंगे, फिर से ऐड करके देखेंगे, फिर से नेक्स्ट सब एरे पे जाएंगे, फिर से हाफ देखेंगे, राइट, एंड सो ऑन। तो कितना टाइम लग जाएगा ऐसा हाफ हाफ करने में कितना टाइम लग जाएगा? 100 के कॉरस्पॉन्डिंग log n टाइम लग जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट टाइम 200 चूज करेंगे। अब 200 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा? फिर से एरे को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, फिर अगेन हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे एंड सो ऑन, राइट। फिर से कितना लग जाएगा? log n, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग log n, सेकंड के कॉरस्पॉन्डिंग log n, थर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग फिर से log n, nth एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग भी। तो ऐसे ऐसे क्या करना पड़ेगा? हो सकता है n एलिमेंट्स और n-1 एलिमेंट्स को चेक करना पड़ जाए, तो फिर से log n। तो फाइनली टाइम क्या लग जाएगा इसका? दैट इज n log n, ठीक है। तो ऐसा करने में क्या टाइम लग जाएगा? n log n टाइम लग जाएगा। इट मीन्स इन बाइनरी सर्च इट विल टेक order of n log n time. Yes, is it clear or not? बाइनरी सर्च का कॉन्सेप्ट अपने को सबको पता है ना, कि अगर स्मॉलर होगा तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, ग्रेटर होगा तो राइट सब एरे में देखेंगे, फिर से दो पार्ट कर देंगे उसके, अगर नहीं मिला तो, है ना। और फिर से वही लेफ्ट और राइट सब एरे को चेक करेंगे कौन से वाले पे जाना है। यस, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, क्या इससे लेसर टाइम भी लग सकता है? तो एन स्केयर इससे ज़्यादा था, बाइनरी सर्च उससे कम ले रहा है। ओके, व्हाट अबाउट नेक्स्ट है कि इससे भी कम लग सकता है क्या टाइम? इज इट पॉसिबल? यस, कैन वी सॉल्व दिस वन इन लेसर टाइम? log n टाइम, हाउ? बताना पड़ेगा कैसे। ओके, दैट में दैट इज द बेस्ट केस, बट वी आर लुकिंग फॉर द वर्स्ट केस। बेस्ट एल्गोरिदम फॉर द वर्स्ट केस, ठीक है ना। ये वाला केस तो मुकेश बेस्ट केस बता दिया, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। बुरे से बुरा क्या हो सकता है, वो वाली बात।
ओके, हाउ पिंकी वी कैन सॉल्व दिस वन इन ऑर्डर ऑफ एन टाइम, बताना पड़ेगा कैसे. ओके, एरे में वो वाला एलिमेंट ना हो फिर तो और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो एन ऑर्डर ऑफ एन टाइम में सर्च करना भी मुश्किल हो जाएगा. Okay, let me explain how it can possible. Assume that index A is represented by this one, and here it is represented by this one. Okay, so what we can do, we can take this first index and last index and we can add that one, right? तो first index पे क्या है 100 plus 800, is it equal to 1000? No, it is 900. Okay, then what we require the greater element. Another thing, array is sorted array, right? Array is sorted. तो हमें क्या चाहिए, इससे ग्रेटर एलिमेंट चाहिए ना. तो ग्रेटर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, विल विल इंक्रीमेंट दिस पॉइंटर, इस ए वाले पॉइंटर को क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, राइट. तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा अब, ए पे क्या होगा, ए इज 200 और बी पे क्या होगा, बी पे 800, राइट. सो दैट इज इक्वल टू 1000, राइट. इसका मतलब क्या हो गया कि वर्स्ट केस में ऐसा ऐसा करके कितना चलना पड़ता, अज्यूम हो सकता है कि n-1 टाइम यहाँ तक जाना पड़ सकता था वर्स्ट केस में, या यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ सकता था वर्स्ट केस में. ऑर्डर ऑफ एन लगभग n-1 टाइम हमें चलना पड़ सकता था, है ना. लगभग n-1 टाइम हमें क्रॉस करना पड़ सकता था. तो इसमें कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा, राइट. तो इस केस में कितना टाइम लग जाएगा, ऑर्डर ऑफ n टाइम, राइट. छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से होगा. if a plus b if a plus b that is equal to 1000, a plus b that is equal to 1000, रिटर्न a कॉमा b. ए बी को क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे. एल्स क्या होगा, एल्स इफ a plus b that is greater than, just a minute, a plus b is greater than 1000. अगर a plus b क्या होगा, ग्रेटर देन 1000 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, हमें ये वाला डिक्रीमेंट करना पड़ेगा ना, बिकॉज ग्रेटर देन 1000 अगर आ रहा है तो ये वाला डिक्रीमेंट करना पड़ेगा पॉइंटर, है ना. तो हमें डिक्रीमेंट करना पड़ेगा बी वाला पॉइंटर. तो क्या बना देंगे, b इक्वल टू b-1, राइट. तो ये वाला एक डाउन चला जाएगा, 8 की जगह क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इंडेक्स. ऐसा हो जाएगा, है ना. ओके, नेक्स्ट एल्स क्या हो जाएगा, एल्स एल्स क्या होगा, इसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ए की जगह a+1 कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू a+1, ए में एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट. एल्स पार्ट में क्या करेंगे, ए में एक से इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है. तो ये वाला प्रोग्राम बन जाएगा कुछ इस तरीके से. तो लगभग ये कितना चलेगा, हार्डली क्या हो सकता है, यहाँ से डिक्रीमेंट होता होता यहाँ तक चला जाए. या फिर तो कितना टाइम चला है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम डिक्रीमेंट किया, टोटल एलिमेंट कितने हैं 8, राइट. या फिर ऐसा हो सकता है कि ये वाला पॉइंटर
ये वाला यहाँ पे फिक्स हो जाए और ये वाला पॉइंटर क्या हो, इंक्रीमेंट होता जाए। तो एक बार इंक्रीमेंट हो गया, दो बार हो गया, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, सॉरी यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 अप टू 7, तो n-1 टाइम है ना। या तो लेफ्ट साइड वाला इंक्रीमेंट होता जाएगा या राइट वाला या दोनों भी होंगे, तो लगभग कितना n-1 टाइम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, राइट। तो फाइनली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कितनी लगेगी, दैट इज ऑर्डर ऑफ n टाइम। Now tell me it is clear or not. Clear? Okay, fine. Okay, what about the next question? That homework question. Did you solve that one? Let's see. Input is input is what? It is a sorted array of n distinct, a sorted array of n distinct, sorted array of n distinct elements, n distinct elements that can be negative, 0, or that can be positive elements, negative, 0 or positive integers. इंटीजर्स। आउटपुट, आउटपुट में क्या चाहिए, फाइंड एन एलिमेंट ए ऑफ आई, फाइंड एन एलिमेंट ए ऑफ आई, ए ऑफ आई such that such that a of I इक्वल टू आई, मीन्स ये वाला एलिमेंट और ये वाला इंडेक्स क्या होने चाहिए, दैट शुड बी सेम, राइट। आउटपुट में क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट होगा इस इंडेक्स पे, ये दोनों क्या होने चाहिए, इंडेक्स और ये एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। मान लीजिए कि इंडेक्स क्या है 8, तो उस पे एलिमेंट भी क्या होना चाहिए 8। तो ये वाला इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना है, या फिर वो वाला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा करने में कितना टाइम लग जाएगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक। ओके, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एरे कुछ इस तरह का हो सकता है, दैट array can have the value like it can have 100, or it is -100, -50, -25, then 0, 5, 10, 25, 25, 30, 50, 80, 100. Okay, here it is index number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, so assume this is the array given, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका इंडेक्स क्या हो, सेम, एलिमेंट एंड इंडेक्स दैट शुड बी सेम, वो वाला एलिमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल है, हमें जर्नलाइज करना है इसको, और फिर सोचना है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा, इसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहली बात क्या कर सकते हैं, सिंपली लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं, है ना। लीनियर सर्च अप्लाई कर सकते हैं, तो लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे तो कितना टाइम लग जाएगा,
यस, ऐसा करने में अगर लीनियर सर्च अप्लाई करेंगे कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन। Okay, so here it is sorted array of n distinct elements, sorted array of n distinct elements that can be positive, zero or negative, right? Then find the a of I such that a of I equal to I. तो हम क्या करेंगे, लीनियर सर्च करना शुरू करेंगे। पहले इसके साथ कंपेयर करेंगे, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, कर रहा है क्या, नो, यह यहाँ पे मैच कर रहा। बट वर्स्ट केस में क्या हो सकता था, हो सकता था अभी तक नहीं करे, लास्ट एलिमेंट क्या करे, मैच करे, राइट। लास्ट लास्ट तो क्या, इट में भी दे n/2 हाफ एलिमेंट, है ना, लगभग हो सकता है एरे के हाफ तक जाना पड़ जाए, क्योंकि सॉर्टेड है ना, तो हो सकता है कि एरे के हाफ तक, मिडिल तक जाना पड़ जाए। अब मिडिल तक जाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा, लगभग n/2 कंपेरिजन तो करने पड़ेंगे ना। ये वाला मान लीजिए मैच कर रहा है, तो कितना, लगभग n/2 कंपेरिजन तो करने पड़ेंगे, राइट। अगर n/2 कंपेरिजन करेंगे तो टाइम कितना लग जाएगा लीनियर सर्च में, ऑर्डर ऑफ n टाइम, है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n टाइम लग जाएगा, किससे, लीनियर सर्च से। इफ वी अप्लाई लीनियर सर्च इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम। What about next? Can we apply binary search? Yes. Can we apply the binary search and how much time it will take? N log n. ओके, एन log n कैसे लग सकता है, अगर मान लीजिए कि एक एलिमेंट को सर्च करना है, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने में बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगता है, बताना जरा। किसी एलिमेंट x को सर्च करने में बाइनरी सर्च में कितना टाइम लगेगा। ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में सर्च कर देंगे क्या। या log n दैट मे बी द राइट वन, बट ऑर्डर ऑफ 1 इज द बेस्ट केस, बेस्ट केस बता रहे हो तुम, बट वी आर लुकिंग फॉर द वर्स्ट केस। वर्स्ट केस में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो एक एलिमेंट को सर्च करने में ना कितना टाइम लग सकता है, ऑर्डर ऑफ log n टाइम। बाइनरी सर्च में किसी एलिमेंट को सर्च करने में कितना टाइम लग सकता है, दैट कैन बी द ऑर्डर ऑफ log n। कैसे, मान लीजिए फर्स्ट टाइम मिडल में जाएंगे, मिडल पे अवेलेबल नहीं है तो लेफ्ट सब एरे पे जाएंगे, ऐसे करते करते कितना होगा, हाई कितना होगा, हमने ऑलरेडी कर रखा है ये कॉन्सेप्ट। तो बाइनरी सर्च में कितना लगेगा, किसी एलिमेंट को सर्च करने में log n टाइम लगता है, ठीक है, एक एलिमेंट को सर्च करने में। ओके, ये तो एलिमेंट को सर्च करने में लगता है। अब मुझे तो क्या करना है, एलिमेंट सर्च करना है और उसका इंडेक्स भी चेक करना है। तो इंडेक्स चेक करने में क्या टाइम लगेगा, चेक कर लिया जाएगा उसका इंडेक्स मैच कर रहा है या नहीं, राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्टली बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे तो मिडल पे जाएंगे, 11 + 1, 11 + 1 दैट इज 12, 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6, 6 इज द मिडल वन, मीन्स ये वाला इंडेक्स क्या है, मिडल है। अब क्या चेक करेंगे, कि ए ऑफ आई दैट इज इक्वल टू आई और नॉट।
तो ए ऑफ आई क्या है 10 है, ये क्या है 6 है, ये मैच कर रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कौन बड़ा है इसमें, एलिमेंट बड़ा है क्या, यस। तो ए ऑफ आई दैट इज लेस देन आई और नॉट। ओके, तो ए ऑफ आई क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर है ना। ओके, अगर लेसर होता तो कहाँ पे जाना होता, अगर ये वाला एलिमेंट क्या होता है इससे लेसर होता, तो लेसर होता तो हम कहाँ पे जाते, राइट साइड में, राइट सब एरे पे जाते, है ना। तो मैं लिख देता हूँ, कुछ ऐसा होगा कि इफ ए ऑफ आई दैट इज लेस देन आई, तो कहाँ पे जाना पड़ता, गो टू द राइट, बिकॉज बड़ा एलिमेंट कहाँ पे, राइट में मिलेगा ना, गो टू राइट। एल्स अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होने का मतलब क्या होगा कि ए ऑफ आई दैट इज ग्रेटर देन आई, है ना। अभी तो लेसर बता रहा है, फिर क्या होगा, ग्रेटर। अगर ग्रेटर होगा तो एल्स पार्ट में जाएंगे, एल्स पार्ट में क्या होगा, गो टू लेफ्ट, गो टू लेफ्ट, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग। हमने क्या किया, यहाँ पे चले गए, मिड पे चले गए, मिड पे जाके क्या चेक किया, ए ऑफ आई दैट इज लेस देन आई और नॉट, ए ऑफ आई क्या है 10, 10 इज लेस देन 6 और नॉट, कंडीशन फॉल्स, कंडीशन अगर फॉल्स है तो कहाँ पे जाएंगे, गो टू लेफ्ट सब एरे। तो हमें जाना है कहाँ पे, लेफ्ट सब एरे पे, लेफ्ट सब एरे कौन सा हो गया, ये वाला, इस सब एरे पे जाएंगे। अब क्या करेंगे, फिर से बाइनरी सर्च अप्लाई करेंगे, फिर से बाइनरी सर्च कर अप्लाई करेंगे, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, 6 डिवाइड बाई 2 3, तो मिडल क्या आ गया 3, ये वाला, ठीक है। अब मिडल पे क्या चेक करेंगे, ये वाला चेक करेंगे, ए ऑफ आई दैट इज इक्वल टू आई और नॉट, यस दोनों सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, फिर से ये वाला चेक करेंगे कि ए ऑफ आई इज लेस देन आई और नॉट, यस ए ऑफ आई दैट इज लेस, मीन्स -25 दैट इज लेस देन 3 और नॉट, यस कंडीशन इज ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, कहाँ पे जाना पड़ेगा, गो टू राइट, तो यहाँ से हमें राइट सब एरे पे जाना पड़ेगा, तो ये वाला राइट सब एरे है, तो यहाँ पे दो ही एलिमेंट है, राइट। तो मिडल कौन हो जाएगा, या तो ये वाला या ये वाला, ठीक है। तो मान लिए कि ये वाला मिडल है, तो यहाँ पे ये वाला हो सकता है या ये वाला, अज्यूम करते हैं ये वाला है मिडल, अगर ये वाला मिडल है तो मिल गया हमें 5 = 5, ए ऑफ आई इक्वल टू आई, राइट। तो ऐसे करके मिल गया, कितने स्टेप्स में मिल जाएगा, वर्स्ट केस में हमें कितना टाइम लग जाएगा ऐसा एलिमेंट सर्च करने में, एरे था, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, फिर या तो इस सब एरे पे जाएंगे या इस पे, मान लीजिए इस वाले पे चले गए, फिर से दो पार्ट कर दिए, राइट, या तो इस पे जाएंगे या इस पे, फिर से दो पार्ट कर दिए एंड सो ऑन। तो कितना टाइम लगता है ऐसे करने में, ऐसा करने में लॉग एन टाइम लगता है ना। ऑलरेडी बाइनरी सर्च में ये कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं हम, राइट। तो लॉग एन टाइम लगेगा, तो ये वाला एलिमेंट सर्च करने में भी कितना लग जाएगा, बाइनरी सर्च की हेल्प से लॉग एन टाइम लगेगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च की हेल्प से लॉग एन टाइम लगेगा ऐसा एलिमेंट सर्च करने में, जिसका इंडेक्स और एलिमेंट दोनों क्या हो, सेम। तो ये लॉग एन टाइम में सॉल्व किया जा सकता है, इससे लेसर टाइम में आप सॉल्व कर सकते हो तो बेटर होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आई थिंक इट विल बी द बेटर और बेस्ट एल्गोरिदम फॉर दिस वन, बाइनरी सर्च। नाउ टेल मी इट इज क्लियर और नॉट। ओके, तो क्लियर है, so fine, let's see the next one, you can try for this one. So a sorted array of input is what, a sorted array of n elements, sorted array of n elements where every element is 0 or 1, every element
इज 0 और 1, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, राइट। देन आउटपुट, आउटपुट क्या चाहिए, फाइंड हु इज लार्जर अमाउंट, फाइंड हु इज हु इज लार्जर अमाउंट, दैट इज 0 और 1। 0 ग्रेटर होगा या 1 ग्रेटर होगा, कौन सा अमाउंट ग्रेटर होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ वन ज़्यादा होंगे, कौन से वाले होंगे, राइट। तो इसके लिए ट्राई करना, ये वाला क्वेश्चन है होमवर्क। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। स्टेटमेंट समझ नहीं है, मैंने कहा कि एक एरे दे रखा है, सोल्टेड एरे दे रखा है जिसमें n एलिमेंट्स होंगे, और उसमें फील क्या हो रखा होगा, या तो 0 फील हो रखे होंगे या 1 फील हो रखे होंगे। कोई एरे दे रखा है इस तरह का, और उस एरे में क्या हो रखे हैं, ऐसे 0 0 0 1 1 1 1, कुछ इस तरीके से फील हो रखे हैं, 0 और 1 फील हो रखे हैं, है ना। बट एरे क्या है, सॉर्टेड है, पहले 0 आएंगे तो फिर 1 आएंगे। हमें ये बताना है कि नंबर ऑफ 1 ज़्यादा होंगे या नंबर ऑफ 0 ज़्यादा होंगे, राइट। तो ये कितने टाइम में बता सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेकंड वाला मैं शायद कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, तो बेटर होगा ये दोनों ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है, घर से ट्राई करना, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे फर्दर, ओके।